हेलो एवरीवन। मैं राहुल गुप्ता, एडिटर ऑफ फिल्मी बनिया ऑनलाइन मूवी नेटवर्क, एंड वी आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ मूवी लवर्स based in New Delhi. And today we are starting our podcast called फिल्मी चर्चा, जिसमें हम बात करेंगे मूवी इंडस्ट्री से रिलेटेड माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ऐसी चीजें जो और लोग बात नहीं करते अपनी पॉडकास्ट में अराउंड फिल्म्स एंड टेलीविजन एंड पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट को अंजाम देने के लिए मेरे साथ हैं अनिरुद्ध नाग बंबई से, जो एक बहुत ही सीजन मूवी प्रोफेशनल है मार्केटिंग में, जिन्होंने यूटीवी और फॉक्स स्टार और बी4 यू जैसी नामी गिरामी कंपनीज के साथ काम किया है बहुत सारी फिल्मों पे। और आज हमारा टॉपिक है द इग्नोर्ड इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन द इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो आज हम ये लोग डिस्कस करेंगे कि लॉकडाउन ने किस तरह से टेलीविजन as in OTT platforms like Netflix, Amazon, plus overall film industry को कैसे इम्पैक्ट किया है, ग्रैनुलर और छोटे लेवल पे भी, और किस तरह से चीजें अब बदल रही हैं प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या क्या हम इसके अंदर सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं जो प्रॉब्लम्स इससे अराइज कर रही हैं। Now I would like to ask Anirudh to please tell us about the ignored impact of lockdown on the Indian entertainment sector. Thanks for the introduction, Rahul. See, I'll just say that when the lockdown happened initially, there was a huge discussion about what is going to be the immediate impact on the movie business and the content business as such. And for the last 3 months, if you look at the media canvas, a large part of the discussion during the lockdown has been on the top films and which are made by the top production houses. So those are the films that we have spoken about, which if we look at from an overall gambit of things, is only around 30 to 40 films in totality. Now, specifically sitting in the markets that we are and the way we are circled around the media, we tend to think that is covering 80% or 90% of the business, which is not the reality essentially. So I would just begin by giving you some statistics, because obviously that puts in context of what I'm talking about. Is that annually in our country, if I look at the last 5 years statistics, the number of total films that we made would be in the region of 1800 to 2200 in totality. Within that cosmos, Hindi films per se is around 250 to 280 films. And mind you, I'm talking about only films which have been certified by CBFC. I'm not talking about films which would have shot and stopped in the middle, or somebody is aspiring to make a film and calling it as a film. I'm talking about completed certified films. So in that 2000 films approximately, only around 280 films would be possibly Hindi. If I look at Hollywood releases which have grown over the last few years, they would come out to somewhere at max around 100. So in the least case scenario, we're still talking about 1500 to 1600 films which are made in other languages, regional languages, as we call them. In that, Tamil constitutes to around, in terms of box office, if you look at it, Tamil constitutes around 18% of our overall box office. Telugu constitutes around 17% of box office. And the other regional languages constitute about 13% box office. So just the regional chunk of it constitutes around 48% of the overall box office revenues of our entertainment business. Now, barring some protection which Tamil films have got or Telugu films have got, again the big ones, rest of the entire industry do not have an avenue of monetization left at this point of time during the lockdown. So, and within the Hindi films also, if I'm talking about 280 films are made in a year, I can assure you that when the lockdown would have happened, about 100 to 120 films would definitely be there who would be in the same scenario of certification and release. And what we are talking about in the media gambit, and everybody is concerned about कि इनका क्या होगा, वो इनका क्या होगा, हम 30 से 40 लोगों के बारे में या 30 से 40 पिक्चरों के बारे में ही बात कर रहे हैं. हम ना मीडिया ने, ना इंडस्ट्री, ना किसी ने कोई बात ही नहीं कर रहा है कि बाकी 1500 से 1600 पिक्चरों का क्या होगा. So अच्छा, एक छोटा सा आपको इंटरवीन करूंगा. तो आप ये बताइए अनिरुद्ध कि कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है ये अनसंग प्रोजेक्ट से. तो अगर हम फर्ज करें कि 40 हमारी फिल्म्स है जो
न्यूज में और ग्लेयर में रहती हैं, उसके अलावा कितनी फिल्म्स ऐसी हैं जो, और वो कितना, जो ये आपने 1400-1500 फिल्म्स का नंबर दिया है, ये कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रही होंगी और कितना पैसा, आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो शेयर करें। आई मीन इट्स डिफिकल्ट टू से कि एक्चुअल नंबर क्या होगा, बट करोड़ों में है ये नंबर, लाखों में भी नहीं, करोड़ों में भी होगा ये नंबर। बिकॉज ये सिर्फ अगेन बॉम्बे नहीं, दिल्ली में, बॉम्बे में, तमिलनाडु पूरे स्टेट में, केरला में, कर्नाटका में, बंगाल में, गुजरात में, बिहार में, यूपी में, जहां जहां थ्राइविंग इंडस्ट्रीज है, पंजाब में, हर जगह जो इंडस्ट्रीज है सब जगह वो अटक गई हैं। सी टीवी में क्या है, इट्स अ स्टॉप गैप, वहां रुक गया है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वापस शुरू हो जाएगा। सो उतने महीनों का गैप है। जब फिल्म कंटेंट की पर्टिकुलरली बात आती है या वेब सीरीज की बात आती है, जो बंदे ने बना लिया है उसके पास तो एक ही चारा है, उसको आगे मोनेटाइज करने का, बेचने का। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा रहा ही नहीं है, बिल्ड नहीं हुआ अभी तक कि जो ओटीटी पे कॉन्सेंट्रेट करता है या मोनेटाइजेशन पे वहां डिपेंड कर सकता है रीजनल कंटेंट के मामले में। चाहे वो मराठी सिनेमा हो, चाहे वो गुजराती सिनेमा हो, चाहे वो बंगाली सिनेमा हो। तमिल तेलुगु में फिर भी थोड़ा हुआ है अभी, क्योंकि उनके बॉक्स ऑफिस ज्यादा है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म वहां भी कूद पड़े हैं कि हमको यहाँ पर भी हाई वैल्यू पे खरीदना है। बट बाकी सबके लिए मोनेटाइजेशन का एक ही रास्ता था, वो है थिएटर में रिलीज। और थिएटर्स के बंद हो जाने से उनके लिए तो उम्मीद ही चली गई है। देखिए, उन 1500 पिक्चरों में से हो सकता है साल में सिर्फ 100 ही पिक्चरें पैसा कमाएं। तो अगर हम इस पार्ट ऑफ द सेगमेंट को सम अप करें अनिरुद्ध, तो आपका मानना यह है कि जो इफेक्ट हम लॉकडाउन का मूवी इंडस्ट्री पे देख रहे हैं थ्रू द लेंस ऑफ द न्यूज चैनल्स एंड द मीडिया आउटलेट्स इज ओनली कन्फाइंड टू वेरी फ्यू फिल्म्स, 40-50 ऑफ देम, बट उसके अलावा जो रीजनल कंटेंट है और जो रीजनल फिल्म्स और रीजनल कंटेंट की हम बात कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा हिट हुआ है इस लॉकडाउन में अकॉर्डिंग टू यू, जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे ज्यादा रीजनल कंटेंट। दूसरे लेवल पे जो है वो हिंदी में ही अगर हम देखें तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स जो ठीक ठाक अच्छी फिल्में बना सकते थे या बना रहे थे, वो भी इम्पैक्ट हुए हैं बहुत स्ट्रांगली इसमें। और जहां आपने कहा कि 30 से 40 लोग पिक्चरों के बारे में बात हो रही है, लोगों के बारे में बात हो रही है, यहाँ मैं मीडिया का रोल इसीलिए पॉइंट आउट करना चाहूंगा बिकॉज अभी आजकल हम बहुत सुन रहे हैं ये शब्द प्रिविलेज, जिसे हम कह रहे हैं कि जो भी हमारे कुछ लोग हैं जो प्रिविलेज्ड हैं वर्सेस नहीं है, एंड ऑल दैट डिस्कशन इज हैपनिंग। सुशांत के केस में भी वो बहुत मैटर उठा है। सो उसमें मीडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल रहता है। सो अब अगर मीडिया इन्हीं फिल्मों के बारे में बात करना चाहेगी या चाहती है, क्योंकि लोग उनके हिसाब से वही सुनना चाहते हैं, तो हमें उन्हीं पिक्चरों के बारे में पता रहेगा, ओटीटी भी उन्हीं पिक्चरों के बारे में कंसर्न रहेंगे। सो इट्स अ विशियस साइकिल। सो हम भी उन्हीं पिक्चरों के बारे में बात कर रहे हैं, लोग उन्हीं के बारे में सुन रहे हैं, तो इसलिए उन्हीं के बारे में जानना चाहते हैं, और इसीलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म वही खरीदने जाएंगे। सो इट्स अ विशियस साइकिल दैट द मीडिया स्टार्ट्स एंड दे से कि हमको तो जो पता लग रहा है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट है हम वही कर रहे हैं। लोगों को अपने आप से इंटरेस्ट तो आता नहीं है, उनको तो जो आप बता रहे हैं उससे इंटरेस्ट आएगा। सो इट्स अ विशियस साइकिल। आई टोटली एग्री विद अनिरुद्ध। और ये हमारा जो इसी का ही एक सब टॉपिक है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, वो है जो इशू ऑफ प्रिविलेज इन द ओटीटी मार्केट। की जो ओटीटी मार्केट है, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और आपके जितने भी ये लीडिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इन लोगों के पास जो कंटेंट आ रहा है वो बहुत ही गिनी चुनी प्रोडक्शन हाउसेस से आ रहा है, और उस वजह से जो नया फ्रेश टैलेंट है और जो फ्रेश आइडियाज हैं उनको इतना मौका नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर आप देखें नेटफ्लिक्स को, वो एक बड़े डिफाइंड सेट ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस से इंडियन कंटेंट बना रहा है, जैसे रेड चिलीज हो गया मिस्टर शाहरुख खान का, या अमेजॉन में एक्सेल एंटरटेनमेंट हो गया। तो इस पर पूरी डिटेल में अभी अनिरुद्ध और हमें जरा बताएं, प्लीज बताइए अनिरुद्ध। So I'll just tell you in terms of when we are saying कि अभी concentrate इन्हीं 4-5-6 जगहों पे करा जा रहा है प्राइमरीली। यहाँ फिर वही बात आती है कि हम क्यों एक चीज को कह रहे हैं कि ये प्रिविलेज लॉट है और दूसरा सफर क्यों कर रहा है, उस पर गौर करना बहुत जरूरी है कि इम्पैक्ट वहां से भी कैसा है। क्योंकि अगर हम देखें पिछले, अभी से नहीं, शुरू से ऐसा चला आ रहा है, हम जब कहते हैं नया कंटेंट, गुड न्यू कंटेंट, हम जब कहते हैं न्यू टैलेंट, वो कहाँ से आएगा? वो ज्यादातर आप देखेंगे तो इन्हीं जगहों से आएगा। हो सकता है उनमें से 20 में से एक चीज चले, बट ज्यादा न्यू कंटेंट और अच्छा कंटेंट और फ्रेश कंटेंट और राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स
उन जगहों से उभर रहे हैं। आप ये जान लीजिए कि पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में, लेट्स बी रेलिवेंट टू द करंट टाइम, क्या हो रहा है, पिछले 5 सालों में जो ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्में हैं जिनके हम बारे में बात करना चाहते हैं, उनमें से कितनी फिल्में एक्चुअली रीमेक्स हैं किसी रीजनल फिल्म की जो चली है। सो वो ओरिजिनल कंटेंट कहाँ पैदा हो रहा है? वो जरूरी नहीं कि टॉप प्रोडक्शन हाउसेस में पैदा हो रहा है, वो इन्हीं लोगों ने बनाया है। आप देखिए नया टैलेंट कहाँ से आ रहा है, अदर देन द स्टार किड्स बीइंग लॉन्च्ड, वो इन्हीं सिनेमा से आ रहा है। आई थिंक तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम सही, स्पॉट ऑन है, क्योंकि मेरा मानना है अगर आप किसी और इंडस्ट्री को भी अगर आप चेक करें, आज फार्मास्यूटिकल्स हो गई या कंज्यूमर गुड्स हो गया, वहां पर जो फ्रेश वेव ऑफ आइडियाज या टेक्नोलॉजीज है वो स्टार्टअप्स के थ्रू आती है, इनोवेशन नहीं से आता है। जो एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स होती हैं, दे बिकम अ लिटिल लेजी और दे बिकम लिटिल रिडंडेंट इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, और इसीलिए मर्जर्स और एक्विजिशंस भी होते हैं। तो आई थिंक आपका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम वैलिड है कि जो फ्रेश आइडिया है वो फ्रेश जगह से ही आएगा, एक एग्जिस्टिंग स्टेबल से उसके आने के चांसेस इतने नहीं है। See, I don't have a problem at all, और I'm not saying इशू है कि जो एग्जिस्टिंग बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, अरे उनको इतना काम क्यों मिल रहा है, इतना क्यों चीजें हो रही हैं। ऑफ कोर्स इतना बैंक उनका काम का है कि उनको मिलेंगी, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, बट आई एम जस्ट टेकिंग अ कॉरलरी कि आज फिल्म बिजनेस में सडनली एक डिबेट रेज हो रहा है, प्रिविलेज का जो हो रहा है, कि आप औरों के लिए, आप करिए जॉब कर रहे हैं, पर औरों के लिए जो आ रहे हैं उनके लिए रास्ता ब्लॉक मत कीजिए। सो अभी जब मैं फिल्म बिजनेस को और मैं ओटीटी को देखता हूँ, फिल्म बिजनेस में ये बहुत हद तक इंग्रेन हो चुका है, बैठ चुका है। आई डोंट नो अभी जो सारी बातें हो रही है उसमें कितना वो चेंज होगा, बट स्टार है, उसका बच्चा है, प्रोड्यूसर है, उसका बेटा है, बेटी है, डायरेक्टर है, उसका एक लीनियज है, तो उसमें हमसे हम लोग सब फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बट ओटीटी एक नया मीडियम है अभी, हमारे देश में इसने अभी पर्कुलेट करना शुरू किया पूरी तरह से। उस माहौल में अगर यही चलन जो फिल्म बिजनेस में चलता आ रहा है अगर ओटीटी में भी चलने लगेगा, तब फिर नए आइडियाज को, नए टैलेंट को उनका ड्यू मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं वो क्यों जरूरी है सबसे ज्यादा, क्योंकि अभी अगले 1.5 साल तक शायद थिएटर नहीं खुलेंगे। तो बहुत, मेरा मानना है कि 1.5 साल तक शायद नहीं खुलेंगे। आप देख लीजिए, अगर कोई मेडिसिन आ भी जाती है, और मैं लॉकडाउन से नहीं इसको माप रहा हूँ, अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो लोग, आई एम नॉट श्योर दे विल फील सेफ कि हम जाके थिएटर में पिक्चर देखें अभी। और अगर आएंगे भी तो कम लोग आएंगे, आपका मानना ही है? तो बहुत कम लोग होंगे। जो पहले नॉर्मली भी अब देखें तो 35% से ऊपर ऑक्यूपेंसी नहीं जा रही थी फिल्मों की। तो अगर वो ऑक्यूपेंसी ड्रॉप होके 15% तक पहुंच जाती है, तो ना थिएटर वालों के लिए वायबल रह जाता है कि वो थिएटर चलाएं, ना फिल्म वालों के लिए वायबल रह जाता है कि उस पर डिपेंड करें कि हमारी रेवेन्यू से आएंगी। सो उनकी डिपेंडेंसी ओटीटी पे शिफ्ट होनी ही वाली है। जब तक मेडिसिन नहीं आ जाते, जब तक आप पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं फील करते कि यार बाहर जाने पे और लोगों के साथ बैठने में अगर मुझे हो भी जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक आप नहीं जाएंगे। और वो स्टेज पर पहुंचने की मुझे हो भी जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत टाइम है अभी। यस, ऑफ कोर्स। और मेरा बस तो एक चीज मैं इसमें थोड़ा सोच रहा था कि अगर हम रेगुलेशन की तरफ सोचें व्हेन इट कम्स टू कंटेंट गोइंग टू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, रेगुलेशन मतलब मैं ये नहीं चाहता, मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है, आई थिंक आप में शायद अग्री करें आपका, जैसे आप देखिए अगर इफ यू अग्री विद मी और नॉट, कि हमारे यहाँ अब डेटा और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेसिस है जिसके बिना पे हम लोग कह रहे हैं कि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन और इन सब लोगों की बहुत मैसिव सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज हो रही है। तो अगर कल ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट्स लाइक भारती एयरटेल और जियो तो ऑलरेडी कर रहा है, तो मेरा मानना यह है कि जियो अपना ऑलरेडी एक स्टूडियो विद दिनेश विजन चला रहे हैं, जियो स्टूडियोज, जिन्होंने काफी फिल्में अभी निकाली हैं, प्लस दे ओन नेटवर्क 18, सो वायाकॉम 18 और इन पे सारी पिक्चर्स का स्लेट अपना बना हुआ है। लेकिन मेरा मानना है जैसे भारती एयरटेल हो गया या वोडाफोन हो गया, अगर ये कंपनीज जो बैकबोन और टेक बैकबोन दे रही हैं, अगर वो ही कंटेंट प्रोड्यूस करती हैं अपना खुद का जो उनके नेटवर्क पे रन करता है, तो आई थिंक एक मोनोपोली इससे हम बच जाएंगे। हम देखिए, एक तो क्या देखिए, जो डेटा और टेलीकॉम कंपनीज है, दे आर, हालांकि सिचुएशन आज उनकी कोई बहुत अच्छी नहीं है, बट उनकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट्स इतनी मैसिव होती हैं
कि अगर एक एक टेलीकॉम कंपनी भी रोते रोते भी 25-30 हजार करोड़ का रेवेन्यू करती है, तो अज्यूमिंग लेट से उन्होंने मार्केटिंग के अपने 500-600 करोड़ के बजट में से धीरे धीरे करके 50 करोड़ 60 करोड़ रुपया एलोकेट करना शुरू किया टू न्यू प्रोडक्शंस, तो धीरे धीरे वी विल सी सम न्यू स्टफ हैपनिंग एंड they will look at investment in content with patience, and secondly they will look at it purely not as an ROI what a regular producer will. So this is what Jio is also doing, कि उनको लगता है कि हमने यूनिट इकोनॉमिक्स अपनी ऐसी बना ली है प्रोडक्शंस की कि हम ओवर अ पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 10-20 इयर्स ग्लोबली राइट्स ओन करके और इंडिया में चारों तरफ स्ट्रीम करके वी विल मेक आवर मनी बैक गिवन आवर नेटवर्क. तो आई थिंक इससे बड़ा फर्क पड़ेगा once we have these companies coming. So see, I don't know कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं in making their own content, but you are absolutely right कि if they get into it seriously, जियो ने कोशिश करी है, उन्होंने आने की कोशिश की है. I don't know अभी कितना वो और aggressively उस पर spend कर रहे हैं to make their own content. But आपका कहना बिल्कुल सही है. अगर ये टेलीकॉम नेटवर्क्स घुसते हैं इसमें कि हम बैंडविड्थ तो क्रिएट कर ली है हमने, हम कंटेंट भी अपना बनाएंगे, अगर उन तरह की कोई लोग घुसते हैं इस बिजनेस में तो बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनका मापदंड जो है देखने का बिल्कुल फर्क है, उनका नजरिया बिल्कुल फर्क है. और जैसा कि आपने कहा वो हर चीज ROI पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. उनके लिए हर कंज्यूमर सेगमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है हर देश के हर कोने में. और होता क्या है कि स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट रीजनल कंटेंट में क्या है, while we are all one nation, ये बात भी सही है कि जो ईच पॉकेट है, जो बंगाली है, गुजराती है, मलयाली है, वो अपनी लैंग्वेज में कंटेंट देखना चाहता है, सुनना चाहता है कुछ हद तक. तो वो जो एक भूख है उस कंटेंट की, मुझे लगता है इस पीरियड में उस भूख पे जो है बहुत ज्यादा उनको सप्लाई नहीं मिलने वाला है. सो अगर ये लोग उसमें घुसते हैं वो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में देखेंगे, ऐसा मेरा मानना है. और वो इसका बहुत बड़ा सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि जो बना रहे हैं कंटेंट उनके लिए भी कहीं राहत पड़ेगी इस चीज से कि उनको कोई एक आसरा मिलेगा जहां पर कोई खरीद रहा है उस कंटेंट को और यूज कर रहा है इफेक्टिवली. सो देयर कैन बी अ डिस्कशन एंड एक्सचेंज बिटवीन देम. वो बहुत जरूरी है. देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ अनिरुद्ध. मेरे को लगता है रेगुलेशन का फायदा ये होगा कि अगर एक रेगुलेटरी बॉडी इंडिया में आ जाती है जो बेसिकली एंट्री बैरियर्स बना दे फॉर बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी क्यों चाहिए होती है कि हमारा कंसर्न जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे को एग्जिस्टिंग बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ये प्रॉब्लम जरूर है कि अगर एक स्ट्रीमिंग नेटवर्क सिर्फ एक ही प्रोडक्शन हाउसेस से सामान ले अपना या 1-2-3 से ही ले, तो मुझे लगता है अगर एक रेगुलेशन आ जाती है कि भाई एवरीबडी नीड्स टू, एक मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी का मार्केट क्रिएट ना हो जाए और ऐसा ना हो कि लोग डिक्टेट करने लग जाएं, तो उसमें होगा ये समवेयर डाउन द लेन. आपका भी मानना यही है कि कंटेंट की क्वालिटी स्टाइफल करेगी, डाइवर्सिटी नहीं आएगी ज्यादा कंटेंट में, एंड इन अ वे जो सब्सक्राइबर्स हैं नेटवर्क्स के दे विल आल्सो नॉट फील हैप्पी और धीरे धीरे करके वो उस कंटेंट को अबैंडन कर देंगे. बिल्कुल बिल्कुल 100% मैं एग्री करता हूँ आपसे इस मामले में. और अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी आती है, तो ओनली डिफरेंस इज दैट आई वुड से दैट रादर देन क्रिएटिंग एंट्री बैरियर्स they might come in and open these entry barriers. क्योंकि अभी फिलहाल जो आप बोल रहे हैं exactly वैसा मुझे दिख रहा है होते हुए, जहां पर कि एक्चुअली आप अगर एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के पास जा रहे हैं, उनके रिलेशनशिप है 3-4 प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, जिनके साथ वो अपना 80% स्लेट बांध दे रहे हैं, 80-90% स्लेट. तो ऑटोमेटिकली बाकियों के लिए एक एंट्री बैरियर बन जाता है वो. अगर वो एक कंटेंट के बेसिस पे हो रहा है कि हाँ हमारे पास, हमको पता है ये 10 कंटेंट पीसेस आए हैं प्रोडक्शन हाउसेस जो सुपर्ब हैं, वो हम ग्रीन लाइट करते हैं और हम उसका एक देखते हैं कि हाँ वो परफॉर्म कर रहा है, 10 में से चलो 7 परफॉर्म कर रहे हैं, देन इट्स अ जस्टिफाइड थिंग. अब मैं एक सिंगल आउट करना चाहूंगा एक प्रोडक्शन हाउस का जो कि क्वालिटी वाइज डिलीवर कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसको अगर मिल भी रहा है चांस तो उसमें कोई बड़ी बुरी बात नहीं, उसको बहुत अच्छी बात है, एनकरेज करना चाहिए इस क्लीन स्लेट प्रोडक्शन. अनुष्का शर्मा का, शर्मा उनके ब्रदर का जो प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म, हाँ चला हो या ना चला हो, वो डिनाई नहीं कर सकते कि एक क्वालिटी है उसमें. चलना ना चलना दूसरी बात है. देखिए इनफैक्ट ये खुद नेटवर्क्स भी सोच रहे हैं, ये प्रॉब्लम उनको आ रही है कि वो भी डाइवर्सिटी ढूंढ रहे हैं. तो अगर आप देखें टीवीएफ जैसे एक छोटे तरीके से अपना पंचायत शो लेकर आया है एज अ यूट्यूब नेटवर्क,
but then you have to remember TVF is very well funded by the likes of Tiger Global as a private equity fund. और TVF के अलावा अगर आप देखें, राम माधवानी ने अभी जो सुष्मिता सेन का शो बनाया है आर्या फॉर हॉटस्टार, वो भी एक कमीशन शो है. तो आ रहा है टिडबिट्स, बट यस यू आर राइट, एक रेगुलेटरी बॉडी आती है, स्ट्रीमलाइन ज्यादा हो जाएगा, कंटेंट की डाइवर्सिटी और आ जाएगी, लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वही प्रोडक्शन और क्रिएटिव लोग काम नहीं करेंगे अलग अलग आइडियाज पे, मल्टीपल टीम्स करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. तो जस्ट टू फाइनल क्लोजिंग कमेंट्स ऑन दिस एपिसोड, अनिरुद्ध, इसके सॉल्यूशंस आपको क्या लगते हैं ये लॉकडाउन से जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके लिए? सॉल्यूशंस तो पता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है अपने हिसाब से कर रहे हैं जो उनको बेस्ट लगता है. जो मुझे लगता है कि अभी जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स हैं इस दौरान उनको थोड़ा संभल के रहना होगा. दे कांट गो अहेड एंड मेक फिल्म की हमको या कंटेंट की हमको बनाना है, हमारी इच्छा है उतना क्लियरली. एक बहुत जरूरी चीज है, अगर पॉसिबल है, जैसे कि आपने बोला, आई एम नॉट श्योर रेगुलेटरी बॉडी कोई अभी आ सकती है कि नहीं आ सकती है, बट इफ दे कैन हैव अ बॉडी वेयर विच रिप्रेजेंट्स देम, तो वो उनको बहुत हेल्प कर सकती है. क्योंकि ये वही बात है कि अगर इकट्ठे हो जाए तो मुट्ठी है, अकेले तो कुछ भी नहीं. तो वो उनके लिए बहुत जरूरी है. अगर कहीं से कुछ एक संस्था बनाई जाए, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो उनको रिप्रेजेंट करे, तो उनके लिए थोड़ा उनकी आवाज थोड़ी ऊंची हो सकती है, उन मीनारों तक पहुंच सकती है जो ये डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई ये बनाना है या नहीं बनाना है, या कितने में खरीदना है नहीं खरीदना है. तो वो आई थिंक उनको बहुत हेल्प करेगा, चाहे वो रीजनल कंटेंट हो, चाहे वो इंडिविजुअल या स्मॉल प्रोड्यूसर्स हो. आई थिंक उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी, उनका एक वॉइस बहुत जरूरी है. तो दैट आई थिंक इज समथिंग इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये बात सभी रियलाइज कर रहे हैं, सारे प्रोड्यूसर्स, कि अगले 1.5 साल तक मुश्किल है थिएटर्स का, चाहे वो बोल रहे हो ना बोल रहे हो. और वो सब चाह रहे हैं, जो टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, कि वो किसी तरह से जो 3-4 प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें अपना कब्जा जमा लें, अगले साल के लिए 10 शो उनके लिए लॉक कर लें, ताकि उनकी गृहस्थी चलती रहे. बट अगर ओपन मार्केट के हिसाब से देखो तो सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए. वो मुझे लगता है इम्पैक्ट पड़ सकता है उस पर. काफी जरूरी है उस पर फोकस करना. चलिए, थैंक यू. So you have anything to say, Anirudh? You were saying something? No, mostly this. Per se, the other thing is कि मुझे लगता है कि जो ग्रीन लाइटिंग प्रोसेस है कंटेंट का, उसको थोड़ा मोर एक्सट्रिंसिक बनाना चाहिए rather than intrinsic. जो लोग हैं कंटेंट इवैल्यूएशन के, वो आपस में देख रहे हैं. You are very absolutely correct when it comes to this. What I would say is कि इसको करने का तरीका यही है कि हम इसको और लेंथ में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ग्रीन लाइटिंग एक बहुत बड़ा इशू है. क्या कंटेंट सिलेक्शन है? Maybe we can do a separate episode only on green lighting. It is such an interesting subject area. That's a very interesting topic, huh? Yeah. So anyways, viewers, this is the end of our first episode of Filmy Charcha. Please like and subscribe our page on Facebook, Filmy Baniya, FILMIBANIYA. Like and subscribe us and push the bell icon on YouTube. We are also here by the same name on YouTube as well. And many thanks for your patience. This is Rahul Gupta signing off for Filmy Baniya. Thank you so much.